Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you would all be fine and doing absolutely great. My name is Sadaf Javed and today the topic that I am going to discuss is sampling. The link of sampling part 1 video will be given in the description box down below. So let's just get started. Now, in my previous video, I have clearly talked about two types of sampling. One was probability sampling and the other one was non-probability sampling. We had discussed about probability sampling before. Today the topic that we are going to discuss is non-probability sampling. So now the question arises that what is non-probability sampling? Non-probability sampling is the type of sampling in which you select the sample deliberately, that is by using your experience and skill. What this means is कि जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि probability sampling में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग randomly सोचे समझे बगैर हम लोग randomly sample को select कर लेते हैं population में से, लेकिन हमारे पास non-probability sampling में ये केस नहीं होता. Non-probability sampling में हम लोग जो अपना सैम्पल चूज़ करते हैं वो हम बहुत सोच समझ के अपने स्किल्स यूज़ करके अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके बहुत डेलिब्रेटली हम लोग अपना सैम्पल जो है वो चूज़ करते हैं. नाउ टॉकिंग टूवर्ड्स द टाइप ऑफ non-probability sampling, we have actually 5 different types of non-probability sampling that we would actually be discussing in this video. The first type is quota sampling. The second type is convenience sampling. The third type is judgemental sampling. The fourth type is volunteer sampling. And the fifth type is snowball sampling. So let's just see what these non-probability sampling technique holds for us. Now first sampling technique, that is quota sampling. Let's see what quota sampling actually is. Quota sampling is a non-probability sampling technique wherein the assembled sample has the same proportion of individuals as the entire population with respect to known characteristics, traits or focused phenomena. अब यहाँ पर वो बेसिकली हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोटा सैम्पलिंग हमारे पास क्या होती है कि जब हमें पता है कि लेट सपोज आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल कि लेट सपोज मुझे पता है कि मेरे पास पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें 40% मेल है, 40% फीमेल है और जो 20% है वो हमारे चिल्ड्रन की रेशो है. तो बेसिकली अगर मैंने पूरे पाकिस्तान पे बेस्ड कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपने सैम्पल में ऑलमोस्ट 40% ऑफ द मेल का परसेंटेज रखूँगी, ऑलमोस्ट 40% मैं फीमेल की परसेंटेज रखूँगी और ऑलमोस्ट 20% मैं परसेंटेज रखूँगी चिल्ड्रन की, क्योंकि मेरे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुई है. दैट इज़ वाई मैं अपने सैम्पल में भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से करूँगी. दिस इज़ बेसिकली नोन एज कोटा सैम्पलिंग. फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली सी दैट कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने एक सैम्पल जनरेट किया है. अब सैम्पल हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके 4 एज ग्रुप्स में डिवाइड करके जनरेट किया है. एक हमारे पास वो कैटेगरी है जो 11 to 21 ईयर्स तक लोग लाई कर रहे हैं. दूसरी हमारे पास वो कैटेगरी है जो 22 से 31 ईयर्स तक लोग लाई कर रहे हैं. तीसरी हमारे पास वो कैटेगरी है जो 32 से 41 ईयर्स तक लोग लाई कर रहे हैं. और चौथी हमारे पास वो कैटेगरी है जो 42 से 51 ईयर्स तक लोग लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारे पास पॉपुलेशन में जिस तरह की वेरिएशन थी हमने वही सारी वेरिएशन जो है वो अपने सैंपल में लोड की है. सो this was it about the quota sampling. Moving towards the second type of non-probability sampling, and that is convenience sampling. So let's have a look what convenience sampling holds for us. Convenience sampling is basically the most common of all sampling techniques. With convenience sampling, the samples are selected because they are accessible to the researcher. Subjects are chosen simply because they are easy to recruit. This technique is considered easiest, cheapest and least time consuming. अब हमारे पास बेसिकली कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या है आपको नाम से पता चल रहा होगा कि दैट मीन्स कि आप जो सैम्पल चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए चूज़ करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है. मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि लेट सपोज आई लिव इन एन एरिया, ठीक है, और मैंने
सर्वे करना है स्कूल्स के कुछ स्टूडेंट्स का, तो व्हाट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग कि मेरे एरिया में जो स्कूल्स हैं आई वुड प्रेफर कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं वहाँ पर सर्वे कर कर अपना एनालिसिस परफॉर्म करूँ, रादर देन मैं ऐसे करूँ कि एक मैं अपने एरिया का स्कूल उठाऊँ और बाकी फिर 2 3 4 5 मैं किसी और एरिया का स्कूल उठाऊँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगी कि मैं अपने ही एरिया के 3 4 स्कूल्स का डाटा इकट्ठा करूँगी, वहाँ जो बच्चे हैं उनका डाटा इकट्ठा करूँगी और उस डाटा की बेस पे जो मैं सैम्पलिंग करूँगी दैट इज़ नोन एज कन्वीनियंट सैम्पलिंग, बिकॉज दैट सैम्पल वॉज अवेलेबल टू मी कन्वीनियंटली एंड दैट सैम्पल वॉज easily accessible for me. This is basically the convenient sampling. Now, moving towards the third type of sampling, that is judgmental sampling. You know what the good thing about it is that मतलब आप देख रहे हो कि ये सैम्पलिंग टेक्निक है, ये सैम्पलिंग टेक्निक है, एंड इवन आप उनके नाम से भी जज कर सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या होगा, इस सैम्पलिंग टेक्निक में हमारे पास क्या होगा. सो लेट्स सी कि व्हाट एक्चुअली जजमेंटल सैम्पलिंग इज़. Judgmental sampling is more commonly known as purposive sampling. In this type of sampling, subjects are chosen to be a part of the sample with a specific purpose in mind. With judgmental sampling, the researcher believes that some subjects are more fit for the research compared to the other individuals. This is the reason why they are purposely chosen as subjects. नाउ यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली हमें ये कहा जा रहा है कि मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करूँगी कि लेट्स सपोज फॉर एन इंस्टेंस हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने सर्वे करना है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एंगर ऑन स्टूडेंट्स हेल्थ. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ जजमेंटल सैम्पलिंग कि अब मैंने अपना सैम्पल सेलेक्ट करना है. तो लाइक फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं एट टाइम्स. तो मैं क्या करूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन बच्चों को उठाऊँ जो बच्चे ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और फिर मैं उनका रिज़ल्ट एनालाइज करूँ कि बेसिकली वो जो एंग्री हो जाते हैं वो उनकी हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग कि मैंने उन लोगों को जज किया और मैंने उन लोगों को पर्पसली सिलेक्ट किया कि जी दीज पीपल आर फीजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ माई सैम्पल एंड आई कैन कंडक्ट माई रिसर्च ऑन ऑल ऑफ दीज पीपल. सो नाउ दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग, दैट मैंने खुद से जज करके बेसिकली ये आइडिया लिया, ये डिक्लेरेशन की कि जी मैंने वो लोग सिलेक्ट करने हैं दैट आर फीजिबल फॉर माई रिसर्च. Moving towards the next type of sampling, and that is snowball sampling. Now, what is snowball sampling? Snowball sampling is usually done when there is a very small population size. In this type of sampling, the researcher asks the initial subject to identify other potential subjects who also meets the criteria of the research. The downsides of using a snowball sample is that it is hardly representative of the population. Now let me explain the snowball sampling. मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बेसिकली स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है. लेट्स सपोज एक बंदा है, वो रेस्टोरेंट गया है खाना खाने. वहाँ बैठकर जब वो बंदा खाना खा रहा है तो ड्यूरिंग दैट टाइम उस बंदे की डेथ हो जाती है पॉइजनिंग से. अब वी डू नॉट नो कि पॉइजन उस खाने में था या किसी ने डाला था या वो घर से जो चीज़ खा के आ रहा है उसमें पॉइजन था. वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट पुलिस रीचेज, द डिटेक्टिव रीचेज एज वेल. वो आते हैं, वो सबसे पहले शेफ़ को पकड़ते हैं कि जी हाँ जी आप बताएं क्या हुआ, कि इज़ देयर समथिंग इन योर फूड. तो शेफ़ कहता है कि जी नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे खाने में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे खाने में ऐसी कोई चीज़ होती तो बाकी जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो सब अफेक्टेड होते हैं. उसके बाद पुलिस और डिटेक्टिव जो है वो जाते हैं मैनेजर के पास और वो मैनेजर को कहते हैं कि क्या आपने कुछ देखा है. तो मैनेजर कहता है कि जी मैंने तो कुछ नहीं देखा, आई वॉज अटेंडिंग समवन ऑन द अदर टेबल. अब खैर कर आके हमारे पास बेसिकली ये हो जाता है कि एट दी एंड जो एक्यूज्ड होता है पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग किस तरह से एग्जिस्ट की कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो पास्ट में हुआ है हमने उन लोगों से डाटा कलेक्ट किया और पास्ट सब्जेक्ट की बेस पर हम लोगों ने अपना फ्यूचर सब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर किया। दिस इज़ बेसिकली नोन एज स्नोबॉल सैम्पलिंग। और इसका एक डाउनफॉल ये है कि यहाँ पर हम ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ये हम स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए करते हैं, ये हम लार्जर स्केल पर अप्लाई इतने अच्छे से नहीं करते क्योंकि ये लार्जर स्केल पर इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। Now, the last type of non-probability sampling is volunteer sampling. Now, let's see what volunteer sampling actually is. Volunteer sampling, as the name indicate, हम देखते हैं कि क्या होती है, लेकिन आपको नाम से पता चल रहा है कि that it is something related to be a volunteer or something like that. So, volunteer sampling is a sampling technique where participants self-select to become part of a study because they volunteer when asked or respond to an advert. अब मैं समझाती हूँ कि ये क्या होता है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वॉलंटियर सैम्पलिंग जो है इसको हम सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊंगी, इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि लेट सपोज हम लोग गए हैं, मैंने एक रिसर्च कंडक्ट करानी है, मैं एक यूनिवर्सिटी में गई हूँ और उस यूनिवर्सिटी में जाकर अनाउंस करती हूँ कि दिस इज़ माई रिसर्च टॉपिक एंड आई वॉन्ट सम स्टूडेंट्स फॉर माई रिसर्च टू कॉपरेट विद मी। ठीक है, अगर आप में से कोई मेरे साथ कॉपरेट करना चाहता है, ही और शी कैन कम फॉरवर्ड। तो क्या होता है कि मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि क्राउड में से कुछ 10, 20, 30 लोग जो हैं वो निकल के आगे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं टू बी द पार्ट ऑफ योर रिसर्च। अब वो जो 20-30 लोग आगे आए हैं जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है वो मेरा सैंपल बन जाएगा। ये इस तरह का जो मेरा सैंपल है दैट इज़ बेसिकली नोन एज वॉलंटियर सैम्पलिंग, कि जो लोग पार्ट ऑफ द सैंपल हैं उन्होंने खुद अपने आप को वॉलंटियर किया है to be the part of the sample. Now, this is it for the today's lecture. अब मैं एक दफ़ा सिर्फ लेक्चर को रिव्यू करना चाहूँगी कि हम लोगों ने पिछली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि what is sampling, और हमने पढ़ा था कि sampling has two types, probability sampling and non-probability sampling. पिछले लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली आपको probability sampling डिस्क्राइब की थी. This lecture is about non-probability sampling. So, non-probability sampling is basically जब आप एक सैम्पल सेलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपर्टीज। दैट मीन्स जो आप सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हो वो आप डेलिब्रेटली सेलेक्ट कर रहे हो। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फॉर एग्जांपल कोटा सैम्पलिंग, वॉलंटियर सैम्पलिंग, many different other types as well. So then we have described all those types in detail. I hope it would be clear to all of you till now. So this is it for today's video. In next video we would be coming up with some other topic as well. If you have any queries about the topic, you can just write that in the comment section down below and I'll reply each and every query out there. Thank you so much.